तो ये वृक्ष दिवस भी है, मगर ये बात सही है, इसके साथ ये कर आतंकवाद से सबको मुक्ति देने वाला मुक्ति दिवस भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि जीएसटी का अर्थ गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, मगर ये गुड और सिंपल टैक्स है। जो टैक्स इस देश में 17 करोड़ 23 प्रकार के सेस को समाप्त कर देगा। पहले तो 17 प्रकार के इंस्पेक्टर जिनकी सैलरी हमारे ही टैक्स के माध्यम से होती है, वो हमको तकलीफ देने में पराक्रम और पुरुषार्थ समझ सकते थे। चुंगी नाके पे मुंबई के कोई भी कर्मचारी हमें रोक देता था, कतारें खड़ी हो जाती थी गाड़ियों की, और कोई पूछता था भैया आप इतना टैक्स भरने के बाद में लाइन में एक कोई कर्मचारी आपको रोक के पूछता है भैया चुंगी भरी या नहीं। अब तो आपका से मुक्ति मिल गई, एमओडी से मुक्ति मिल गई, टैक्सों से मुक्ति मिल गई। बस यही अपेक्षा है। मैं आपको शुभकामना देने आया हूं। यहाँ आते समय मैं जीएसटी भवन का उद्घाटन, जीएसटी भवन के नाम की आज शुरुआत करके आया, तो मैंने वहां यही कहा कि महाराष्ट्र के बारे में विशेषता क्या है। तो जीएसटी में आपको ये शायद कल भाषण से तो पता चला ही होगा कि जीएसटी की शुरुआत तो 1950 में हुई, मगर इस देश की कल्पना को आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया तो महाराष्ट्र के डॉक्टर विजय केलकर ने किया है। ये तो महाराष्ट्र की कल्पना है, महाराष्ट्र की उपज है। जिनका नाम विजय था तो जीएसटी के बाद देश को भी विजय मिलेगा। और इसलिए हमारा आज से एक नया पर्व ऐसा शुरू होने वाला है कि एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, मगर हमारे महाराष्ट्र में टीजीएसटी, टीम जीएसटी के नाम से हम सब मिलकर, वो चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे व्यापारी हो, उद्योजक हो, जो टैक्स देता है उसके लिए अब यही भावना है। किसानों की कर्ज मुक्ति हमने की, अन्नदाता सुखी भव कहा, अब आज से करदाता सुखी भव, ये अन्नदाता सुखी भव के साथ जुड़ जाएगा। और इस कर से इस देश को ऐसा मजबूत बनाएंगे कि कभी किसी ने नास्ट्राडामस में लिखा था कि 21वीं सदी में ये देश दुनिया का कप्तान बनेगा। आज से कप्तान बनने की शुरुआत शुरू हुई है। जीएसटी का अर्थ गरीबों की सेवा के लिए टैक्स है, और गरीबों की दुआओं के साथ हम सब देश को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. I request Dr. Swal Bambe to share his views. Honorable Central Minister for Transport and Fisheries, respected Sri Gadkari ji, who is fondly known in this country as Roadkari. Because last 3 years, this country has witnessed a widespread network of highways, 23 kilometers per day, and this has never been achieved before. Dynamic Chief Minister of Maharashtra, who has recently waived off farm loan to the tune of 34,000 crores, Sri Devendra ji. An equally dynamic Finance Minister of Maharashtra, respected Sri Sudhir Mungetiwar ji, office bearers of ICAI. Let me begin by congratulating you all for the Foundation Day of ICAI. It is a momentous occasion
an honor that our dynamic Prime Minister Sri Narendra Modi ji will address the CA profession, and he would also be launching new curriculum CA course. And this is a historic day. Government of India is implementing long-awaited GST, Goods and Service Tax. And there is a panel discussion organized by your institute. I also congratulate you for inspired cooperation given by CA community all over India in formulating this historical bill. It would be also an understatement to say that we are on the brink of transforming the economical landscape of this country. This journey has been eventful and remarkable, and has brought out the spirit of cooperative federalism between states and center. Introduction of GST would be a very significant step in the field of indirect taxation of this country. By amalgamating large number of central and state taxes into single tax and allowing set of price taxes, it would mitigate the ill effect of cascading and pave way for common national market. For the consumer, the biggest gain would be in terms of reduction in overall tax burden on goods, which is currently estimated to be 25 to 30%. Introduction of GST would also make indigenous products competitive in domestic as well as international market. There may also be revenue gain for state as well as center. Last but not least, this tax, because of its transparent character, it will be easier to administer. GST would introduce uniform taxation law across the states and different sectors in respect to indirect taxes, which would make it easier to supply goods, services. This will help in removing economic distortions, promote export, and bring about the development of common national market. This will definitely give a boost to India's tax to gross domestic product ratio, thus help economy efficiency and sustainable long-term growth. This will boost foreign investment and make it India competitive. It will boost manufacturing activities, generation of more employment, leading to reduced poverty and increased GDP growth. Wishing that CA profession will contribute in the activities of development of our country as they have been doing in the past. CA have a major role to play in years to come, especially in the field of GST. I remember last year, former Defense Minister had raised the issue of actual accounting. I am very glad to say that Defense has already started in the 3 departments, that is Cancel Road Department having a turnover of 20,000 crores, as well as military farming. And this year we got the permission for ordnance factory, almost 41 factories spread across the country, having the turnover of 20,000 crores. I wish you all the best. I thank organizers for giving me this opportunity. Thank you. All the best. Jai Hind, Jai Maharashtra. Requesting Gadkari sir to share his views. महाराष्ट्र के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंच पर उपस्थित
महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार जी, और आप विशेष रूप से उनका जोरदार तालियां बजाकर इसलिए स्वागत करिए पिछले साल उनके इनिशिएटिव के कारण 2 करोड़ वृक्ष लगे और आज उन्होंने शुरुआत की है। 7 दिन में 4 करोड़ पेड़ लगाने वाले हैं और अभी तक कंप्यूटर पर हर को मार्क किया है, वो संख्या शायद अभी कितनी हुई, 64 लाख एक दिन में पेड़ लगाए गए। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मेरे सहयोगी डॉक्टर झामरे जो डिफेंस के स्टेट मिनिस्टर हैं, हमारे वेस्टर्न रीजन के आपके अध्यक्ष जी अग्रवाल जी, सभी ऑफिस बेयर्स और उपस्थित भाई और बहन, 6:35 को मुझे रुकना है क्योंकि बाद में देवेंद्र जी बोलेंगे और 6:40 के बाद प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं। वैसे जीएसटी के बारे में ज्यादा आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। 165 देशों में जीएसटी लागू है और आज हमारे देश में भी उसकी शुरुआत हुई है। जीएसटी के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि 17 टैक्सेस और 22 सेस एबॉलिश हुए हैं और इससे निश्चित रूप से हमारे देश के विकास में इसका बड़ा योगदान होगा। आपको पता होगा कि मुंबई से दिल्ली तक आने के लिए हमारे 18 टोल नाके हैं और 5 जगह स्टेट बैरियर्स हैं। तो एक ट्रक अगर दिल्ली से मुंबई आता है तो महीने में मुश्किल से 10 ट्रिपें कर सकता है, पर ये स्टेट के बीच के बैरियर्स और हमने अभी ई टोल कर दिया फास्ट ट्रैक। अगर ये दोनों जगह समय बचेगा तो वही ट्रक एक महीने में 10 के बजाय 14 ट्रिप मारेगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। और इसलिए हमारे देश में जीएसटी के कारण सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर कोई होगा तो चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 18% है और हमारे चाइना में 8 से 10% है और हमारे देश में 18% लॉजिस्टिक कॉस्ट जाती है और यूरोपियन कंट्री में 12 से 14 तक आती है। और इसलिए हम हमारे एक्सपोर्ट में लॉजिस्टिक कॉस्ट के कारण मार खाते हैं और इसलिए मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को कैसे कम करें। अगर आप रोड से जाते हैं तो 1.5 रुपये खर्चा आता है, अगर आप रेल से जाते हैं तो 1 रुपया आता है और पानी से जाते हैं तो 20 पैसे आता है। और इसलिए अभी हम लोग कोस्टल ट्रांसपोर्ट जीएसटी के बाद वो भी हम लोग उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं और दूसरी ओर 112 नदियों को हमने जलमार्ग में रूपांतरित करने का निर्णय किया है। गंगा पे 5000 करोड़ का काम शुरू हो गया है, ब्रह्मपुत्र में शुरू हुआ है। अब महाराष्ट्र में अम्बा रिवर का भी काम हम अगले महीने में शुरू करेंगे। गोवा में 2 नदियों का काम शुरू करेंगे। ब्राह्मणी करके उड़ीसा में उसका काम शुरू करेंगे और 15 दिन के बाद में आंध्र प्रदेश में बैंकिंग हम कैनाल जो उसका पूरा जलमार्ग का काम शुरू करेंगे। तो जलमार्ग और 20,000 किलोमीटर की रिवर लेंथ और 7,500 किलोमीटर का समुद्र किनारा, इसका अगर ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग होगा तो हम चाइना की तुलना में जल्दी ही 12% पर अगर आएंगे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो 22 से 24% पर आ जाए हमारे जीडीपी में, वो निश्चित रूप से 30 से 35% पर जाएगा। क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस अगर होगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी फायदा होगा। मुझे लगता है कि एक के साथ दूसरी चीज जुड़ी है। इसके साथ साथ जो रेट कैपिटलिज्म था, जो करप्शन था, तो बिजनेसमैन यही कहते थे कि 10 के जगह 15% पर झंझट पर लगो। अब आप तो बोल नहीं सकते, मैं तो बड़ा ऊपर में बोलता हूँ। ये जितने इंस्पेक्टर रहते थे इनको महीना देना पड़ता और सभी ऐसे थे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पर बने जगह पर लोग तकरार करते थे। और हमारे टोल नाके पर और स्टेट बैरियर और देवगिरी में नागपुर में रहते हैं। हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो स्टेट का था उसके तो कार्ड छपे थे,
बड़ा वेल डिसिप्लिन प्रोफेशनल ट्रांसपेरेंट से काम चलता था और ट्रक वाले वो काट देते थे और वो आगे जाते थे। एक दिन अभी वो बंद हो गया क्योंकि एक दिन मैंने उनको कहा कि हम लोग सीबीआई की इंक्वायरी करेंगे, तो उसके बाद वो बंद हुआ। तो आज ये सब समय की भी खराबी होती थी, भ्रष्टाचार भी होता था और 8-8 घंटे उसके ऊपर टाइम भी लगता था। तो मुझसे लगता है कि इससे एक मुक्ति मिली है। दूसरी और एक बात है कि जैसे इनकम टैक्स में कोई रेड मारता है तो पहली बार उसके ऊपर 100-150 करोड़ टैक्स उसको डिक्लेयर करने के लिए बोलते हैं। जब ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो अभी मुझे जानकारी मिली कि बड़ी मुश्किल से 15% 20% केसेस जीतते ही, पर शुरुआत के समय में काफी बड़ी डिमांड लगा देते हैं और जब कोर्ट में जाते तो उससे भी और कम होती है। और इसीलिए छोटे छोटे टैक्स के कारण काफी हरासमेंट होती है। टैक्स भी वसूली होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए, ईमानदारी भी चाहिए, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी चाहिए और रेट टेररिज्म से मुक्ति भी चाहिए। तो इसलिए हमारी जो इकोनॉमिक डेवलप करने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो इकोनॉमी जो है हमारी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हमारी प्रायोरिटी है। Our government is very much committed for progress and development, and we are a rich nation with a poor population. And the basic reason is wrong economic policies, bad and corrupt governance, and visionless leadership. अब appropriate vision and appropriate leadership, मुझे लगता है कि इसके कारण करप्शन फ्री सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी, इससे निश्चित रूप से हमारे औद्योगिक और सभी प्रकार के विकास में गतिशीलता आएगी। मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को कह रहा था कि बहुत लोगों के मन में एप्रीहेंशंस है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में ये जो जीएसटी काउंसिल है ये केवल भारत सरकार की नहीं है, इसके सभी फाइनेंस मिनिस्टर सुधीर बाबू उसके मेंबर हैं और जो भी निर्णय हुए वो इन सब लोगों ने यूनानिमस किए हैं। और जीएसटी काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि अगर कोई निर्णय होगा तो उसमें भारत सरकार के लिए कोई अधिकार नहीं है, जबकि बाकी स्टेट के भी फेडरल कैरेक्टर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वैसा उसका संविधान है। और अगर कभी चुनाव होगा उसमें डिवीजन होगा तो 75% के लिए सपोर्ट चाहिए, पर मुझे लगता है ऐसा कभी वक्त आया नहीं, पूरा यूनानिमस डिसीजन हुआ। और ये जो 30-32 लोग हैं ये फाइनेंस मिनिस्टर बिलोंग्स टू डिफरेंट पार्टीज हैं और इसलिए जीएसटी ये ऑल पार्टी, ऑल स्टेट्स और फेडरल गवर्नमेंट का यूनानिमस डिसीजन है और इसलिए ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जो कह रहा था अभी देवेंद्र जी को कि एक स्टेट के मन में भावना थी कि हाँ ये जीएसटी लगने के बाद हमारा इनकम कम होगा, पर मैं लगातार जो कुछ, मैं तो एक सीए भी नहीं हूँ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, पर मुझे थोड़ा बहुत जो लगता है, मेरा फीलिंग ये है कि जीएसटी के बाद गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम नहीं होगा तो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो पिछले साल था उससे 20 से 25% बढ़ेगा, ताकि जो कर्जे मुक्ति हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है उनको निश्चित रूप से रिलीफ मिलेगा। इसका कारण 10-20 लाख रुपए तक जो व्यवहार करेंगे उनके ऊपर 0 जीएसटी को रजिस्ट्रेशन करना है। 75 लाख के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसको 2% है और जो ट्रेडिंग करते हैं उनके ऊपर 1% है। तो धीरे धीरे अभी कवर जो है टैक्स का वो पूरा इतना बड़ा बनेगा कि नंबर 1 और नंबर 2 की चिट्ठियां अभी काम नहीं करेगी। मुझे पता है आप लोगों का जो एक्सपर्टाइज है उसको कम उपयोग में लाना होगा, क्योंकि बहुत से लोग आपकी सलाह से भी ये करते कि कैसे एंट्री करना, कहाँ पैसे ट्रांसफर करना, वो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एवरीथिंग ट्रांसफर हो जाएगी। और ट्रांसपेरेंसी के कारण टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को भी मिलेगा और इसमें काफी बढ़ोतरी होगी। और गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का बजट अगर बढ़ेगा तो डेवलपमेंट पर बढ़ेगा, उसके कारण रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा उसके कारण एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा होगा और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल अगर खड़ा होगा तो गरीबी दूर होगी। और इसलिए वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और जीएसटी के कारण जो सिंपलीफिकेशन है, जो गुड एंड सिंपल, ऐसा वर्णन प्रधानमंत्री ने कल रात को किया था। अभी मुझे हमारे आपके वाइस प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छी बात कही, ग्रेट सर्विस टू नेशन। उन्होंने जीएसटी के बारे में, जीएस के बारे में कहा कि ग्रेट सर्विस टू नेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे सरकार के द्वारा देश में हम लोग जो आर्थिक विकास करना चाहते हैं
और देश को दुनिया की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारा जीडीपी है, जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाना है जो 8 से 10% है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 22 से 24 से 29 से 35% तक ले जाना चाहते हैं, और जो सर्विस सेक्टर है निश्चित रूप से हमारे देश में अच्छा है जो 52 से 54% है। पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बनेगी, और इससे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, इंडिजिनियस और स्वदेशी के आधार पर टेक्नोलॉजी का विकास करके और रोजगार निर्माण करने वाली आर्थिक नीति हमारे देश की आवश्यकता है। और उस पहल में जीएसटी एक इतना बड़ा ऐतिहासिक रिवोल्यूशनरी इकोनॉमिक रिफॉर्म है कि जो इसके सभी स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत विन विन सिचुएशन में फायदा करने वाला है। ये बिजनेसमैन, उद्योगपति और ग्राहक तीनों को भी फायदा होगा, इन्फ्लेशन इससे कम होगा और ये देश के तरक्की और विकास को हमको आगे ले जाएगा। और इसलिए ये ग्रेट सर्विस टू द नेशन ये बहुत अच्छी बात है। और इसलिए मेरा विश्वास है कि जो लोगों के मन में थोड़े से एप्रीहेंशन है, हमारी सरकार बहुत ओपन है। आप जो भी सुझाव देंगे, अगर कुछ गलती होगी, क्योंकि शुरुआत में ऐसा होता ही है। दिल्ली में एयरपोर्ट जब खुला नया तो पहले दिन कहीं लीकेज हुआ, कहीं लाइट गई, ये प्रॉब्लम आए। आप भी नए घर में जाएंगे तो प्रॉब्लम आती है, पर सरकार बहुत पॉजिटिव है, ट्रांसपेरेंट है। जहाँ जहाँ ऐसा हमको लगता है कि हमारी कमियां हैं, उसको सुधारने के लिए तैयार है। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स ये हमारी प्राथमिकता है और इसलिए उसमें भी हम सुधार करेंगे। और इसलिए आने वाले समय में मेरा विश्वास है कि देश एक ऐतिहासिक और रिवोल्यूशनरी इकोनॉमिक रिफॉर्म में आज से जा रहा है। और इसलिए सुधीर बाबू ने कहा है कि ये आज का दिन ये हमारे देश के आर्थिक एक प्रकार से आर्थिक स्वतंत्रता हमारे देश को मिली है। इतना भी बड़ा हम कहेंगे तो शायद गलत नहीं होगा। मैं आप लोग भी स्टेक होल्डर से आपका सहयोग इसमें बहुत जरूरी है और आप सबके सहयोग से ये ऐतिहासिक निर्णय यशस्वी होगा, यही विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Let's all welcome our beloved Honorable CM Devendra Fadnavis. हमारे नेता भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे जी, मेरे सहयोगी महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर श्री सुधीर मुनगंटीवार जी, WIRC के विष्णु अग्रवाल जी, सर्वेश जोशी जी, प्रदीप जी, यहाँ पर उपस्थित सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक नई शुरुआत भारत के वित्तीय इतिहास में आज हो रही है और जीएसटी के माध्यम से इस देश में वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट इस संकल्पना को स्वीकृत किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये सारी प्रक्रिया में अगर सबसे बड़ा रोल अब किसी को निभाना है तो वो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को निभाना है। There is always a fear of unknown.